आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। हम बातचीत कर रहे हैं ग्रुह फाइनेंस की मैनेजमेंट से। हमारे साथ मिस्टर सुधीन चौकसी मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ कंपनी के। मिस्टर चौकसी, इस क्वार्टर के अंदर जो नंबर्स आए हैं उसमें एक पार्ट जो क्रूशियल है वो है कंपनी के एक्सपेंसेस को लेके, खासतौर से प्रीपेमेंट जो हायर प्रीपेमेंट किया गया है। अगर आप इसको विस्तार समझा पाए, किस तरह का पूरा बदलाव हुआ और कितना इम्पैक्ट कंपनी का इसके इस बदलाव के बाद आया है नंबर्स के ऊपर? जो प्रीपेमेंट होते हैं, देर आर 3 काउंट ऑन विच द प्रीपेमेंट होता है। एक तो जो सब कस्टमर्स लोन रीपे करते हैं ईएमआई से, सो ईएमआई के अंदर थोड़ा प्रिंसिपल का कंपोनेंट रहता है, सो वो प्रिंसिपल रीपे होता है तो लोन पोर्टफोलियो थोड़ा श्रिंक होता है। So that is a very normal phenomena and that happens for every banker or every housing finance company. Second reason is that the customers sometimes because when the competition increases and the lower interest rates are available from some other lenders, the customers prefers to move out from one lender to another lender, and as a result they make a full prepayment of their loan. So that also causes a prepayment. And the third thing which we have experienced slightly on a higher side is because of the credit linked subsidy scheme, where we have been able to reach out to around 10,000 families. The government subsidy scheme हमने पहुंचाई है उधर. So I think because when a subsidy amount comes, that amount gets credited to their loan account. So that also causes a prepayment. So these are the 3 grounds on which the prepayment happens. Okay. This quarter, you have rightly observed that our prepayment ratio has marginally gone up. Generally, we have seen our prepayment ratio ranges in the range of around 10 to 12%. This quarter, we have experienced an increase in the prepayment ratio from 12% or 11% in the last year to 13%. So it's a marginal increase. Part of it is on account of the credit link subsidy which we receive upfront, and partly is on account of the competition which has been hitting up, and the banks, especially the public sector banks, who have been offering very low rate of interest. I think that has caused a higher prepayment ratio. जी सर, आपसे आखिरी सवाल होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका एक बड़ा मार्केट शेयर है, आपको एक बड़ा मार्केट शेयर मिला हुआ है, वहां पर अच्छा मार्केट आपको मिलता है। गोइंग फॉरवर्ड ये स्कीम या हाउसिंग फॉर ऑल जैसी जो स्कीम्स हैं वो कितना बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराने वाली है? I think we are very optimistically looking at this opportunity because for the first time, any government who has comprehensively addressed the issue of the housing at affordable segment, and the whole policy document is quite a comprehensive, very desirable for this country. And out of that policy document, one part is a credit link subsidy scheme, and I think that is going to give a lot of incentive for the families to own and reduce their interest burden also. So, and we have been primarily operating in this segment. Our incremental average ticket size of the loan is 9.5 lakhs, and therefore we are financing the properties which are costing around 15 to 20 lakhs. So I think this is a market segment where there has been a shortage, and I think we only hope that the supply will continue to come. Still, many states have to take a lead in creating an opportunity for a supply to come into this segment. And we are hopeful, very hopeful, and I think over a period of time, I think probably in the next 3 to 4 years, I think this can be a good opportunity. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चौकसी अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, विस्तार पूर्वक कंपनी के बारे में बातचीत करने के लिए और सभी तरह के विस्तार योजना बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ अब विकास सेठी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विकास, हम ग्रुह फाइनेंस की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। नंबर्स अच्छे रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और अपने पूरे स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग पियर के तौर पे है। हालांकि थोड़ा कंपटीशन जरूर बढ़ा है पीएसयू बैंक से, लेकिन कंपनी वेल मैनेज है और आराम से उसको संभाल भी रही है। आगे के लिए जो आउटलुक है काफी बुलिश है। आप क्या व्यू रखते हैं ग्रुह फाइनेंस के ऊपर? देखिए, जिस तरह से इसके नतीजे आए हैं, या आप अगर पिछले 1-1.5 साल में देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है और स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा वेल्थ जनरेट किया है।
बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे ये स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। आप अगर कंपेयर करेंगे इनके पीएस से, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, DHFL, PNB हाउसिंग या कैनफिन होम्स, तो ये सबसे काफी महंगा ये स्टॉक अभी चलता है। तो मेरी राय में जिन निवेशकों ने लिया हुआ है वो तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी आपको करनी है तो थोड़ा करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। आई वुड बी कॉन्फिडेंट इन दिस स्टॉक। अगर ये यहाँ से 10 से 15% की गिरावट आती है और स्टॉक कुछ 425-440 के लेवल पे अगर अवेलेबल होता है तो दैट वुड गिव अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। विकास, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। कई कंपनियां जो माइक्रो फाइनेंस में थी वो भी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आ चुकी हैं। इस स्पेस को इतना इंटेंसिफाई, इतना हीटअप होते हुए अब अगर आपको कोई कंपनी चुननी हो तो कौन सी चुनेंगे आप? कोई कंपनी आपको लगती है बेहतर है या निवेश किया जा सकता है अभी भी? नहीं, बिल्कुल यही जो मैं अभी थोड़े 3-4 कंपनियों के जो नाम बता रहा था, तो उनमें से मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से इन लेवल्स पे LIC हाउसिंग फाइनेंस और DHFL दोनों ही पसंद आते हैं। और मुझे लगता है कि हालांकि कंपटीशन बढ़ा है, नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ गए हैं, बट मार्केट भी भारत में एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। आज भी घरों की बहुत कमी है और जिस तरह से सरकार का फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, फिर हाल ही में इन्होंने बजट के पहले भी या बजट में भी जो छोटे साइज के लोन हैं उनके लिए इंटरेस्ट का इंसेंटिव दिया है। तो इन सबको देखते हुए और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है RBI से रेट कट की बिल्कुल उम्मीदें की जा सकती है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस एज सेक्टर अच्छा करता रहेगा। यहाँ पे जो NPS की भी प्रॉब्लम्स बैंकों के कंपैरिजन में कमती है, तो इन सबको देखते हुए सेक्टर अच्छा लगता है। और विद इन द स्पेस वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे LIC हाउसिंग फाइनेंस और DHFL दोनों ज्यादा पसंद आते हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। इन सभी शेयरों पर भी और पूरे स्पेस पर भी ग्रुह फाइनेंस हालांकि करीब 492 के स्तरों पर है। विकास का मानना है कि अगर ये शेयर गिरता है, आपको कहीं भी नीचे मिलता 10 से 15% नीचे गिरावट आती है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि अभी शेयर थोड़ा हीटअप हो चुका है बड़े रनअप के बाद। तो नीचे के लेवल पर अगर मिले तो एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। मार्केट से नजर आए तो गिरावट थोड़ी और गहराई है बाजार के अंदर, और अब करीब अगर निफ्टी की बात करें तो रफली 9852 के लेवल पे, यानी 63 अंकों की गिरावट अब निफ्टी में देखी जा रही है। और जो मेजरली निफ्टी की गिरावट में कंट्रीब्यूशन है वो ITC की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं से ही बाजार में एक मेजर प्रेशर है और उसी की वजह से एक बाजार में दबाव बढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरा बड़ा शेयर है जो कि दबाव बना रहा है मार्केट्स के ऊपर। अब डे लो पर आ चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से भी बाजार में जो गिरावट थोड़ी और गहराई है। गेल, हिंडाल्को, औरोबिंदो, इंडसइंड, ये कुछ और ऐसे नाम हैं जहां पर बिकवाली है, जिसकी वजह से बाजार में प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट्स में कुछ खरीदारी जहां अभी आई है, उसमें कॉक्स एंड किंग्स जैसे शेयर्स देखिए, एक खरीदारी कॉक्स एंड किंग्स में ऊपर आई है, 2% के आसपास की बढ़त इसमें अभी देखने को मिली है। तो एक सडन स्पाइक कॉक्स एंड किंग्स के अंदर है। दूसरा HCL इन्फो, आज सुबह से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, कॉक्स एंड किंग्स स्क्रीन पर सडन स्पाइक है। और HCL इन्फो जो कि आज सुबह से ही तेज है, अभी और तेजी बढ़ी है 1% के आसपास की, और दिन के ऊपरी स्तरों पर ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है।